اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو ریویژن میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور شیطان سے لڑتے ہیں وہ ہمارے لیے۔ چار فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیشہ جو دو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، دو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارجین اینجلز بنایا جو کہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور جب کوئی ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو برائی لکھ رہا ہوتا ہے، جو گناہ والا فرشتہ ہوتا ہے، اس سے بول دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ اپنی غلطی کا احساس کر لے، اور پھر ہماری وہ غلطی جو ہے نہیں لکھی جاتی اور استغفار کا جو ہے کیا لکھ دیا جاتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے الحمدللہ۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہم فاسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کسی نے نوافل روزہ رکھا ہے تو کوئی اگر ہمارے سامنے کھا رہا ہوتا ہے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، افطار ٹائم میں دعا کرتے ہیں اور سحری میں دعا کرتے ہیں، اور ہم صحیح طریقے سے سو پائیں، ہے نا، اس کے لیے بھی جب ہم وضو کرتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو رات بھر ہمارے لیے کیا کرتا ہے، مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، جب ہم اٹھ گئے، اگر مر جاتے ہیں تو کس اس میں اٹھیں گے، لیکن جب ہم واپس اٹھ جاتے ہیں تو یہ ہمارے سر پر بینرز لے کر چلتے ہیں۔ کیسے بینرز؟ کہ کوئی آج اچھا کام کرنے نکلا ہے اور اگر غلط کام کرنے نکلیں گے تو شیطان وہ بینرز لے کر نکلے گا ہمارے سر پہ۔ اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری جو ذیل ہوتی ہے، گھوڑے کی لگام جیسی ہوتی ہے، وہ ہمارا سر اوپر اٹھا دیتے ہیں فخر سے، اور اگر ہم کیسا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تو ہمارا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہیٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی ہمیں برا بھلا بول رہا ہوتا ہے اور ہم چپ رہتے ہیں تو یہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ ہماری طرف سے کیا کر رہا ہوتا ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے بہنوں۔ پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب ہم کس کے لیے آتے ہیں، نالج کو، جیسے کہ آج بہنیں آپ آئی ہیں تو کیا ہوا ہوگا، آپ کے سر پر ایک فرشتہ بینر لے کر گھوم رہا ہوگا کہ آج یہ علم سیکھنے، نالج سیکھنے جائے گی، کسی کسی محفل میں جائے گی، کسی گیدرنگ میں جائے گی، ہے نا الحمدللہ۔ اور جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے بولا گیا کہ ایک علم جو ہے انسان کس طرح سے پھیلاتا ہے، جیسے کہ فرشتے اپنا پر پھیلاتے ہیں، اس کو اس طرح سے جو ہے بتایا گیا کہ جس طرح سے فرشتے پر پھیلاتے ہیں۔ اور آپ جب بہنیں اپنے گھر سے آج نکلی، ماشاءاللہ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو کیا ہوا ہوگا بہنوں، آپ سب کے لیے کس نے، سارے عالم جتنے بھی ہیں، سارے عالم کے چیزوں نے، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، آپ کی مغفرت کی دعا کی ہوگی، جیسے کہ چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ کیا ہو، چڑیا ہوں، چاہے وہ پانی میں کیا ہو، مچھلی ہو، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ نالج گین کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے مغفرت کی دعا، آج سوچیے صبح سے ہی آپ کے لیے مغفرت کی دعا اور جو ہے رحمت کی دعا ہر مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے علم حاصل کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی علم حاصل کرنے والے کو بہت بہت زیادہ وہ کہا ہے کہ ان کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آگے۔ تو اس میں 9th پوائنٹ جو تھا وہ یہ ہے، یور بردر آنر، یعنی کہ جب آپ، آنر کا مطلب کیا ہو گیا، جب آپ کسی کی کیا رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ آنر کو، آنر ایکچولی ابھی اردو میں نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، ہندی میں بولتے ہیں نا سمان کر کے، ٹھیک، یعنی کہ آپ جب کسی کی عزت رکھتے ہیں، جی عزت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، عزت جب آپ کسی کی رکھتے ہیں، اور وہ کب رکھتے ہیں، اس کے
पीछे, यानी कि आपका कोई मुसलमान भाई या बहन, उसके पीछे अगर आपने उसकी बुराई सुनी, या फिर आप सोशल मीडिया पर अभी देख लीजिए कि कोई भी किसी भी भाई के लिए, जबकि वो क्या कराते हैं, दावत का काम कराते हैं, दाई है वो, है ना? उनके लिए सोशल मीडिया पर अगर कोई कुछ भी बोलते हैं, तो अगर आप उनको टोकते हैं, अगर आप उनको टोकते हैं और कहते हैं कि ये काम गलत है, यहाँ पर ही अगर कोई लड़की मुझसे आकर किसी तीसरी लड़की की बुराई करे और मैं कहती हूँ कि नहीं, ये गलत है, उसके अंदर जो भी बुराई है, मतलब आप सुनने से ही मना कर दें। बहरहाल ये है, जब आप उसकी इज्जत रखते हैं उसके पीठ पीछे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब क्या होगा, कयामत का दिन होगा ना बहनों, क्या करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक फरिश्ता मुकर्रर कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे एक फरिश्ता उसके लिए, और जो कि उसके फ्लेश को किससे बचाएगा, जो कि उसके मांस को, उसके गोश्त को किससे बचाएगा, हेल फायर से बहनों। हेल फायर यानी कि जहन्नम की आग से बचाएगा। सुभान अल्लाह, सोचिए किस तरह से, कितनी ज्यादा, कैसा मंजर होगा ना। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डालने की कोशिश की है, आप खुद जानिए कैसा मंजर होगा कि आग उबल रही होगी, दहक रही होगी बीच में। और अगर हम अपने भाइयों का, अपनी बहनों का इज्जत रखते हैं उनके पीठ पीछे, भले से उन्होंने कुछ भी काम किया हो, लेकिन हम फिर भी उनकी इज्जत रखते हैं, उनकी कोई कमी कर रहा है तो हम ना सुनेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, आप ये बात उन्हीं के सामने बोलिएगा, आप हमारे सामने नहीं बोलिए। बहनों, सोचिए कि क्या होगा कि वो हमारे गोश्त को, हमारे जितना भी फ्लेश है, हम किससे बचाएगा, जहन्नुम की आग से, वो भी किस पर, पुल सिरात के रास्ते पर। और अगर हमने सिलेंडर किया, सिलेंडर यानी कि उसमें अगर हम शामिल हो जाते हैं बहनों, ये बहुत बहुत देखिए कितनी ज्यादा गौर करने वाली बात है कि अगर हम उसके अंदर हो गए, शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए, तो पुल सिरात जब हम पार करेंगे, तो एक फरिश्ता हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अपॉइंट कर देंगे, और जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक वो नहीं जाएगा, और वो पूछेगा कि क्यों किया आपने ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचिए कि अगर हम लोग तो कितनी बार ऐसा करते हैं ना, तो बेहतर है कि हम इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, और किस अपने भाइयों की और अपनी बहनों की इज़्ज़त रखें। तो क्या करना है, हमें छुपाना है, बचाना है, ताकि कल को एक फरिश्ता आकर क्या करे, अगर पुलसिरात जो है, पुलसिरात की आग से हमको बचा ले, ठीक है? हमें क्या करना है, बुरा नहीं बोलना है, हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है। क्या नहीं करना, हमको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, ठीक है? अगर जैसे कि कोई बुरा बोल रहा है तो हम क्या करें, या तो हम रिस्पॉन्ड ना करें, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हेटर्स को, उनकी डिग्निटी थी ये, ठीक है? ही वाज़ द मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन ऑन दिस अर्थ, है ना? ऑन दिस वर्ल्ड। तो उनकी डिग्निटी थी कि वो कभी भी बेइज्जती को एंटरटेन ही नहीं किया करते थे। या तो हम उनकी तरह बन जाएँ, या फिर हम सोचें कि हम चुप रहें कि कोई फरिश्ता हमारे पीछे खड़ा होकर उसके बदले में जवाब दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि किसी आपके भाई और बहन के साथ ज़्यादती हो रही है, तो आप उसे समझाएँ कि नहीं, ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से ये क्या बोलते हैं, फरिश्ते क्या करते हैं, आपकी हर बात पर आमीन कहते हैं, ठीक है? जैसे कि कुछ देखे हैं किसी बहन या भाई के बारे में, ठीक है? बोल बोल देते हैं ना हम लोग के, दुआ करें, आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए, ठीक है? कुछ अच्छा देखते हैं तो अल्लाहुम्मा बारिक लहा बोलते हैं इमीडिएटली, ठीक है? क्यों बोलते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना? वो इसलिए बोलते हैं कि या अल्लाह उनको ब्लेस करें उस चीज़ के लिए। और ये जो है, जब ज़िंदा दिल का एक टॉपिक हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि कल्बे सलीम जो होता है, एक साउंड हार्ट को बोलते हैं। और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझको और हम सब बहनें जितनी बैठी हैं यहाँ पर, उनको कल्बे सलीम अता फरमाए। कल्बे सलीम ऐसा हार्ट होता है, ऐसा दिल होता है कि वो अगर किसी को मुसीबत में देखे तो दुआ करे, किसी को बुरा करते हुए देखे तो उसके लिए दुआ करता है, किसी का अच्छा देखे तो उसके लिए दुआ करता है, और किसी की तरक्की देखे तो उसके लिए दुआ करता है। और अभी तक कल्बे सलीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ 2 बार ज़िक्र किया, पहला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए और दूसरा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कल्बे सलीम रखने की तौफीक अता फरमाए।
तो हम बोलते हैं जब हम दुआ करते हैं ना, किसके लिए? अपने भाई के लिए या अपनी बहनों के लिए। कोई भी मुसलमान भाई, मुसलमान बहन हम करते हैं तो किसी के पीठ पीछे दुआ की, जैसे हमने किसी मोमिन की उनकी एब्सेंस में, है ना? जैसे अब तो ये, पहले तो ये था कि उनकी एब्सेंस में अगर हमने उनकी बेइज्जती होने से बचाई तो हमें क्या मिलेगा? लेकिन अगर उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, उनके पीठ पीछे हम दुआ कर रहे हैं, तो फरिश्ते क्या रोल प्ले करते हैं? तो उनकी एब्सेंस में जब करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फरिश्ता भेजता है और कहता है आमीन। और क्या कहता है? वलक बिमित, ठीक है? वलक बिमितिन बोलता है, और बोलता है कि आमीन एंड फॉर यू एज वेल, यानी कि वो मेरी दुआ पर आमीन कहेगा और कहेगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। अगर मैं दुआ मांगूं कि या अल्लाह मेरी इस बहन को शिफा अता फरमा दे, तो वो कहेगा तुम्हें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा अता फरमाएंगे। अगर मैं कहूँ कि या अल्लाह मेरी ये बहन इतने टाइम से कुंवारी है, तो इनको नेक रिश्ता अता फरमाए, तो वो फरिश्ता कहेगा कि आमीन, और तुम्हारे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही करेंगे। इसी तरह से मैं जितनी दुआएं अपनी बहनों के पीठ पीछे मांगूंगी, अपने भाइयों के, बाप के लिए, चाचाओं के लिए, फुप्पो के लिए, किसी के लिए भी मांगूंगी, तो वो क्या कहेगा? फॉर यू एज वेल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे हक में भी वो दुआ कबूल करे। ठीक। और जब हम किसी को बताते हैं ना कि मैंने दुआ की थी, मान लीजिए एक ये चीज हो जाती है कि हम जब दुआ करते हैं किसी के लिए, तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमने किसी के लिए कोई दुआ की, लाइक मान लीजिए मैं किसी के लिए दुआ कर रही थी कि उसकी कोई चीज बन जाए या उसका कोई बिगड़ा काम बन जाए, ठीक? और उसका वो काम बन जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? दुआएं कबूल करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ठीक? और मैं उससे जाकर ये कहूँ कि मैंने आपके लिए दुआ की थी, ठीक? लेकिन अगर मैं ये बता रही हूँ तो ये मेरा शो ऑफ नहीं होना चाहिए। मैं किस, है ना? ये शो ऑफ नहीं होना चाहिए मेरा कि मैंने आपके लिए दुआ की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ, मुझे कुछ चाहिए उससे। समझ रहे हैं कि मैंने दुआ की थी तो आपका ये काम हो गया। एक एक ये तरीका है बोलने का, लेकिन नहीं कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए, पता नहीं अल्लाह ने किसकी दुआ कबूल की, मैंने भी आपके लिए दुआ की थी, यानी कि मैं भी आपकी भलाई में शामिल था या शामिल थी। और ये देखिए कि दुआ, जब इंसान दुआ करता है तो इंसान के बहुत ज्यादा गुनाह होते हैं जो कि उसकी दुआ की कबूलियत के आड़े आते हैं, लेकिन फरिश्ते गुनाहों से पाक हैं, फरिश्ते गलतियों से पाक हैं, है ना? तो किसकी दुआ पहले कबूल होगी? उस फरिश्ते की। तो इस चीज को बहनों आदत बना लें, ठीक है? आदत बना लें किस चीज में? कि या अल्लाह या अल्लाह मेरे उस भाई पर रहमत अता फरमा, मेरी उस बहन पर रहमत अता फरमा, या अल्लाह ये बीमार है इसको शिफा अता फरमा। बहनों, चलते फिरते भी किसी को देखो ना, तो उसको दुआ दे दो। अगर एक बच्ची अपने बाप का हाथ पकड़ के जा रही है, तो आप उस बच्ची के लिए दुआ करें कि या अल्लाह ये अपने बाप का सर नीचा ना करे, या अल्लाह इस बच्ची का मकाम आप इस्लाम में, दुनिया में, आखिरत में ऊंचा कर दीजिए। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाता है। इस चीज को क्या करें? आप आदत बना लें, किसी को भी दे के हर किसी को दुआ दें। और दुआ क्या है? सबसे बेहतर तोहफा है, सबसे बेहतर तोहफा है। वो लोग नहीं जान रहे, लेकिन कयामत के दिन तो खुलेगा ना कि मैंने किसके लिए कितनी दुआएं की हैं। मगफिरत की दुआ मांगे, तरक्की की दुआ मांगे, तो आप देखें कितनी जल्दी किस तरह से तरक्की पर जाएंगे जब आप किसी के लिए तरक्की की दुआ मांगते हैं, ठीक है? और क्या करें? लिस्ट बना लें, ठीक है? लिस्ट बना लें लोगों की कि इनको, इन वाली बाजी को ये परेशानी है, इस वाली बहन को मेरे ये परेशानी है, इस वाली आपा को ये परेशानी है। बना लें, नाम लिख लें। कोई बोलता है ना, जैसे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस चीज को रिवील नहीं करना चाहती, नहीं तो फिर वो शो ऑफ में है। यहाँ पर किसी सिस्टर ने बोला था कि उनका रिश्ता नहीं आता, मैं बकायदा उन सिस्टर का नाम लेकर दुआ करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको बिल्कुल से ऐसे आदत बना लेना बहनों, इस तरह से आदत बना ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, जब फरिश्ते आपके लिए दुआ मांगेंगे तो आपके हक में वो चीज पहले होगी। और बिल्कुल भी नियत ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे पहले ये चीज चाहिए, नहीं, सिर्फ नियत खालिस अपने भाई, अपनी बहन, अपनी मुसलमान भाई, अपनी मुसलमान बहन की किसके लिए? भलाई के लिए होगी कि अल्लाह उसको तरक्की दें, या अल्लाह उसको शिफा दें, या अल्लाह उसको नेक शोहर अता फरमाए। इंशाल्लाह हम
किस चीज़ को क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम किस में लेकर आएँगे, अपने रूटीन में लेकर आएँगे, आदत में लेकर आएँगे, चलते-फिरते, उठते-बैठते कोई पानी का ग्लास भी ला दे तो उसको ढेरों दुआएँ दे दीजिए आप। दुआ सबसे बेहतर तोहफ़ा होती है। किसी की वेल्थ नहीं है तो उसके लिए वेल्थ की दुआ, किसी के पास सस्टेनेंस नहीं है, रिस्क नहीं है, उसके लिए रिस्क की दुआ, किसी के फैमिली इश्यूज़ हैं बहनों, है ना? कितना टॉक्सिसिटी होती है ना फैमिलीज़ में, कितने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, कितने लड़ते हैं, भाभियाँ लड़ती हैं, नंदे लड़ती हैं, कितना ज़्यादा होता है ना, तो उनकी फैमिली के लिए दुआ करें, हर चीज़ के लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो थर्ड है कि हमेशा जो है जभी भी आप कोई वो कर रहे हो, फैसला कर रहे हो, तो क्या करें जब कभी भी आप फैसला कर रहे हो तो हमेशा फेयर रहें बहनों क्योंकि वहां पर फरिश्ते मौजूद होते हैं। ये किस्सा सूरह निसा की आयत में भी है। सूरह निसा की मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है आयत, 104 या 106 आयत जो है उसी की तफसीर है। और इसी को जो है उसमें सुनन इब्न माजा में उमर बिन खत्ताब ने क्या किया है, इस चीज को डिस्क्राइब किया है, इसी चीज को, है ना? तो इसके बारे में इंशाल्लाह अब हम जानेंगे कि क्या हमेशा सबसे पहले तो कभी भी कुछ होता है, मान लीजिए कि किसी की भी लड़ाई हो गई, ठीक है, दो लोगों के बीच, और हमारा लेना देना ही नहीं है उस चीज से, लेकिन लोग जब हमसे पूछने आए, जब लोग हमसे पूछने आए, ठीक है, तो और कहते हैं कि आप बताइए इसने ऐसा किया था और इसने ऐसा किया था तो आप जज करो, ठीक है? तो उसमें एक को पसंद नहीं करते, मतलब ऐसा ना हो कि अगर हम इसमें एक को पसंद नहीं करते तो हम बायस्ड हो जाएं, जो सही है वो गलत और जो गलत है उसको सही बोल दें, है ना? क्योंकि हम अपनी पसंद, और क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जज बनाया है आपको, आप समझ रहे हैं? आपके हाथ में मशवरे का वो दिया, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो जभी भी आप जज कर रहे हैं या कोई भी फैसला कर रहे हैं, तो हमेशा फेयर रहें और हमेशा उसको सही तरीके से वो करें। ठीक? और क्या और हम कभी भी अपनी जो है नफ़रत को जो है लोगों को जस्टिस से ना रोकने दें। मतलब जो आपका हेट्रेड है, जो आप नफ़रत करते हैं किसी से, उसकी वज़ह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है किसी को वो कर दिया, लाइक उसको जस्टिस ही नहीं दिलाई, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। आप आपका प्यार, आपकी मोहब्बत वो सब परे है, लेकिन एक सामने जब इंसान खड़ा है तो आपको हमेशा सही तरीके से उसको जज करना है और सही तरीके से उसको जस्टिस दिलानी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फरिश्ते मौजूद होते हैं और जब तक आप सही तरीके से जज नहीं करते हैं बहनों, वो वहाँ से नहीं जाते हैं। आप सोचिए, वो वहाँ से नहीं जाते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे, वो अपनी जस्टिस के लिए जाने जाते थे। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है। और हमेशा जस्टिस, चाहे मुसलमान हो चाहे या फिर नॉन मुस्लिम हो, हमेशा आपको ईमानदारी के साथ बिल्कुल से कोई भी फैसला करना है, चाहे वो नॉन मुस्लिम के हक में हो, चाहे वो मुसलमान के हक में हो। ठीक है? सैयद बिन अबू मुसैब से रिवायत है कि एक ये वाकया है वही सूरह निसा का जो मैंने बताया आपको अभी। तो उसमें क्या था कि एक मुसलमान और एक यहूदी का वाकया है इसमें। ये चीज़ ये एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए थी कि आप ये ना करें कि मुसलमान है तो आप बायस हो जाएँ, क्योंकि वहाँ फरिश्ते भी होते हैं, है ना? तो आप हमेशा जो सही है उसको सही बोलें, ठीक? और क्या था, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और हमेशा जो है क्या हुआ था कि हुँ, जब यहूदी थे, मतलब जो मुसलमान था उसने एक आटे की बोरी चुरा ली थी। आटे की बोरी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा महँगी होती थी क्योंकि वहाँ सिर्फ़ खजूर और पानी से गुज़ारा चला करता था। एक गोदाम से उसने बोरी उठाई और ले गया उठाकर। लेकिन उसमें क्या था, उसने फिर क्या किया, उस बोरी का उसको एक यहूदी के घर में रखा दिया और कहा कि मैं इस चीज़ को तुम्हारे घर अमानत के तौर पर रख कर जा रहा हूँ और ये किसी को नहीं देना। आटे की बोरी में छेद था, तो वो गोदाम वाला जो आदमी था वो पहुंचा यहूदी के घर ट्रैक करते हुए उस चीज को और कहा कि तुमने चुराया है। तो यहूदी ने कहा मैंने नहीं चुराया, ये मेरे पास किसी के अमानत रखी हुई है। और जो वो मुसलमान था उसका नाम था बनु जफर अंसारी। ठीक? तो क्या हुआ फिर उसके बाद, जब वो ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये फैसला वहां गया, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गया। फिर अब बनु जफर को डर लगा
کہ मैं मुसलमान हूँ, मैंने चोरी कर दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला बहुत गुस्से वाले भी थे, लोग डरते थे। सोचिए उनसे तो शैतान भी डरता था, कि जिस गली में वो चलते थे शैतान दूर ही रहता था उनसे। ठीक? गुस्से वाले यानी कि स्ट्रिक्ट, नॉट इन दैट सेंस ना, एंगर इश्यू नहीं था उनको। ठीक? तो अगर किसी ने गलत किया तो वो सही से इंसाफ करने वाले थे। तो अब उसने क्या सोचा, वो जो मुसलमान था उसने सोचा कि ये मैं डाल देता हूँ किस पे, यहूदी पे। एक तो मुसलमान भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है, और इसकी पैरवी करेगा कौन? पहले जब पैरवी किया करते थे लोग तो ग्रुप्स में किया करते, तो बनु ज़फ़र अपने ग्रुप्स को ले आए, एंड दोज़ पीपल वर लाइक नहीं, नहीं, बनु ज़फ़र कैसे कर सकता है चोरी? वो तो मुसलमान है, एक मुसलमान तो चोरी ही नहीं कर सकता। एंड उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, मतलब उनको भी लगा ना ये चीज़ कि कि हो सकता है, लाइक उन्होंने सिर्फ सोचा ऐसा, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे, मतलब इसके बारे में इतनी तफसीर नहीं दी गई है, तो उनको लगा कि हो सकता है कि जूस जो है उसने किया हो, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर फिर एक आयत नाजिल हुई थी, वही सूरह निसा वाली, कि अस्तगफार पढ़िए, क्योंकि सिर्फ आपने सोचा ऐसा, लाइक मतलब आप किसी के लिए सोच भी नहीं सकते हो जब तक आपको पता ना हो। फिर उस यहूदी ने क्या किया, उस यहूदी ने, जब यहूदी ने कहा कि मैंने नहीं की चोरी, और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चोर जो है वो यहूदी नहीं है, वो मुसलमान है, तो फिर उस यहूदी ने कहा कि आपने बिल्कुल करेक्ट जज किया। उमर रज़ियल्लाहु ताला पास उनके पास गए, स्टिक थी, और उससे पोक किया उनको, यहूदी को पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि सही जज किया है कि नहीं किया है, ठीक? तो कोई इंसान सच या सही जज नहीं करता जब तक कि अल्लाह उससे उसके पास 2 फरिश्ते ना भेजें, और जब वो सच सही जज करता है तब वो फरिश्ते चले जाते हैं वहाँ से। यानी कि कोई इंसान, सोचिए हमें जज करने की भी सलाहियत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजते हैं अपने फरिश्तों को और सही जज करवाने के लिए। वो ऐसा होता है ना कि हमको देख रहे होते हैं बहनों, तो इसलिए कभी भी हमें क्या होना है, बायस्ड नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। तो जो फैसला था वो यहूदी के उसमें हुआ, और इस चीज से ये एग्जाम्पल सेट हुआ कि वेदर कोई नॉन मुस्लिम है और वो अगर सही है तो वो सही है, अगर कोई मुसलमान है वो गलत है तो वो गलत है, और अगर कोई आपका भाई है वो गलत है तो वो गलत ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करेंगे, जब हम कभी भी कोई चीज जज करते हैं तो हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद के लिए भी 2 फरिश्ते भेजते हैं, और फिर अगर हम नहीं किए तो वो जाकर बताएंगे कि अल्लाह इसने सही से जज नहीं किया, और इसका जो है नफरत हावी हो गई इसकी सच्चाई पर, इसकी जो है इसका प्यार हावी हो गया, तो इसने उसके पलड़े में चीजें डाल दी। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई भी चीज आएगी तो हम इस चीज को याद रखेंगे इंशाल्लाह, कि हम ना करें ऐसी चीज। फिर नो स्ट्रिंग अटैच, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे तार जुड़े होते हैं, लाइक मतलब हम बहनें हैं, आपस में इतने टाइम से साथ में रहते हैं, हम लोगों के दिल के तार जुड़े हुए हैं, है ना। हम दोनों हम सब क्या करते हैं, हम लोग आपस में इतने टाइम से साथ में है, साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ देयर इज अ कनेक्शन ना, स्ट्रिंग का मतलब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नो स्ट्रिंग अटैच का मतलब क्या है कि मेरा आपसे कोई वैसा ताल्लुक तो नहीं है, ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई चाचा का रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है बहनों, है ना। लेकिन हाँ, एक रिश्ता है कि हम आदम की औलाद हैं, लेकिन उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक। कोई स्ट्रिंग ऐसा नहीं है। तो नो स्ट्रिंग अटैच का मतलब क्या है कि मैं आप बहनों को प्यार करती हूँ, मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की वजह से, क्योंकि आप यहाँ आती हैं, आप यहाँ तालीम लेती हैं, ठीक, सिर्फ अल्लाह के लिए। आप अपनी बीवी को अल्लाह के लिए कैसे प्यार करते हैं, ठीक है? किसी मतलब अब ये है कि अपनी बीवी को कैसे प्यार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, किस तरह से, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपनी बीवियों के लिए, उसको पूरा करके। सिमिलरली अगर कोई बीवी पूछे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मैं कैसे मोहब्बत करूँ, तो जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करके आप अपने शौहर को वैसे प्यार कर सकती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। ठीक है। एक शख्स जो है वो किसी को देखने गया, ये हदीस है जामिया तिर्मिज़ी की। रास्ते में एक फरिश्ता आया इंसान की शक्ल में, और उसने क्या कहा, कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं, एक शख्स है वो बीमार है तो मैं उसे देखने जा रहा हूँ। उसने बोला क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा क्योंकि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। फिर उसने बोला कि क्या वो पावरफुल इंसान है, लाइक जैसे कि अभी कोई पॉलिटिशियन बीमार पड़ जाएगा तो उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ जाएगी, क्योंकि लोगों को अपने काम निकलवाने होते हैं।
फरिश्ते ने पूछा, क्या वो पावरफुल इंसान है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कुछ उधार है तुम्हारा कि कभी तुमको ये डर ना हो कि मर जाएगा तो मेरा उधार कैसे देगा? तो उसने कहा नहीं। कि कुछ चाहिए उससे, कोई फेवर चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक? तो 2 बार जब ये हो गया तो तीसरी बार उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि 2 बार कहीं जाओ तुम उसके पास और तीसरी बार जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएँगे उससे कुछ पाने के, कोई फ़ेवर चाहिए। तो उस इंसान ने जवाब किया नहीं बस अल्लाह की मोहब्बत में। तो फरिश्ते ने कहा मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ और अल्लाह ने कहा कि वो भी तुमको वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे तुम उस इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह। है ना? और इसका आइडिया क्या है? लाइक मतलब इस हदीस से हम क्या निचोड़ निकालते हैं कि कोई पोजीशन वाला बंदा है, उससे मिलने जाएँ, ठीक है? तो वो डिसमिस करता है कि ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत को ना मतलब अगर हम पोजीशन वाले बंदे से मिलने जाएँगे, तो क्या होगा वो डिसमिस कर देगा अल्लाह की मोहब्बत को। कैसे डिसमिस कर देगा? लाइक मतलब अगर मैं ये सोचकर जाऊँगी कि मेरा काम निकल जाएगा, मुझे उसके पास जाना है, तो मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत मुझ तक नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि मेरी नियत तो अपना काम निकलवाने की थी ना, तो बस मेरा काम निकल गया और मैं मिलकर आ गई। लेकिन सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमको उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट देखते हैं द अल्टीमेट हीलर, है ना? हीलर का मतलब क्या हुआ? शिफ़ा देने वाले, लेकिन शिफ़ा देने वाला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और दुआओं से किस तरीके से किसी को शिफ़ा मिलती है, उसके बारे में यहाँ बात की है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं जो बीमार हो, है ना? बिस्तर पर हो। जैसे अभी तो ये हो गया कि कोई बीमार को देखने जा रहा है, तो उसके लिए फरिश्ता क्या करता है और जो खुद इंसान बीमार हो, अब उसके लिए फरिश्ते क्या करते हैं। सोचिए बहनों, जो बीमार को देखने जा रहा है, उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लगाए हैं और जो खुद बीमार है, उसके लिए भी लगाए हैं, ठीक है? जो बिस्तर पे होता है, जिसको फ़ीवर हो, जो बीमार है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं उस इंसान के बारे में, ठीक? तो इमाम मलिक मुवात्ता की ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक इंसान बीमार होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 फरिश्ते उसके साथ लगा देते हैं उसकी बीमारी में। जब आप बिस्तर पर होते हैं तो वो फरिश्ते आते हैं और कहते हैं आपके साथ और देखते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, ठीक है? कि कौन-कौन आपकी अयादत के लिए आया है, कौन-कौन आपको देखने आया है, क्योंकि जो आपको देखने आया उसका सवाब और रिकॉर्ड है। आपके लिए क्या है इंशाल्लाह वो भी बताएँगे। जब आपसे कोई पूछे कि कैसे हो? यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का करम है, या फिर आप बता दें ना तकलीफ कि मैं ऐसा है और यहाँ से दर्द हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, ठीक है? एक्यूरेट पोज़ीशन, जैसे अब डॉक्टर भी पूछेगा कैसे हो? तो हम बता भी सकते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक? तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये फरिश्ते उस इंसान को देखते हैं, ठीक है? कि आपने क्या कहा अपने अयादत करने वाले को, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रिपोर्ट करते हैं कि अल्लाह उसने आपका शुक्र अदा किया। अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि या अल्लाह इतनी तकलीफ में भी उसने आपका शुक्र अदा किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरी चीज़ की, ठीक है? कि वो बोलते हैं कि अल्लाह ये इतना शुक्र हम्द करते हैं, तो वो अल्लाह को बताते हैं आप जाके। अगर आपने दूसरी चीज़ की, तो वो क्या करते हैं, अगर इस बीमारी से उसकी मौत लिखी होगी, मान लीजिए अगर उस बीमारी से उसकी मौत जो है लिखी होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तो मैं उससे यकीनन जन्नत दूँगा, श्योरली मैं उसे जन्नत दूँगा। क्योंकि उसने अपनी तकलीफ बताई, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क्या कि मैं उससे यकीनन जन्नत दूँगा, अगर इस बीमारी से इसकी मौत लिखी होगी। और अगर मैंने शिफ़ा दी होगी इसको, तो मैंने इसके ब्लड को बेहतर ब्लड में बदल देना है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि उसके खून को, जो खून उसके जिस्म में है, जिसमें जर्म्स हैं, जिसमें क्या है, बैक्टीरियाज़ हैं, उसको मैं अच्छे खून से बदल दूँगा, ठीक है? और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। क्योंकि देखो खून की गंदगी से ही तो बीमारी होती है ना। मतलब अगर शिफ़ा मिली तो उसको मैं बेहतर कर दूँगा और उसके गुनाह भी माफ़ कर दूँगा। क्यों? क्योंकि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है अपनी बीमारी में भी। फिर सही मुस्लिम में क्या हुआ कि ये सही मुस्लिम की रिवायत ये सुनिए बहनों, ये कितनी ज़्यादा, मतलब इसको बहुत ही गहराई से सुनिएगा कि रोज़े महशर के दिन जब इंसान खड़े होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि ए आदम की औलाद, मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया। तो मतलब अब
अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे कहेंगे कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो थोड़ा अटपटा सा लगता है ना, तो मैं यही जवाब दूंगी, अल्लाह यू आर अ रज़्ज़ाक, यू आर द वन हु प्रोवाइड्स, है ना? तो मैं कैसे आपको खिला सकती हूँ? सब किसी का भी क्वेश्चन यही होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा माइंड बेंडिंग है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि तुम्हें पता था मेरा ये बंदा उस वक्त भूखा था और उसने तुमसे खाना मांगा और तुमने नहीं दिया, और अगर तुम उस दिन उसको खाना देते तो आज मैं तुमको उसका अज्र देता। देखो, आपने किसी को खाना दिया तो वो तो आपको लौटा नहीं सकता। दावत का तो ये होता है कि आज मैंने इनकी दावत कर दी तो कल को वो बुला ही लेंगे मुझको दावत पर। लेकिन कोई भूखा था, उससे अज्र पाने वाला जैसा नहीं होता है, वो आपको नहीं लौटा सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि मैं देता तुम्हें उसका अज्र, अगर तुम उस टाइम उसको खिलाते। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब सवाल करेंगे कि मैं प्यासा था और तुमने पानी नहीं पिलाया। तो वही है, हम कहेंगे कि या अल्लाह यू आर अ रज़्ज़ाक, आपकी थर्स्ट कोई कैसे मतलब वो कर सकता है ना, बुझा सकता है। तो और आपको तो प्यास भी नहीं लगती, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि मेरा ये शख्स इस टाइम पर प्यासा था और रोज़ेदार था और तुमने उसको पानी तक नहीं दिया, और अगर तुम उसको पानी पिलाते तो आज तुम मुझसे अज्र पाते। लेकिन देखिए, बीमार के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा बहनों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि मैं बीमार था और तुम अयादत को नहीं आए, ठीक? मैं बीमार था और तुम अयादत को नहीं आए, तो फिर से क्वेश्चन यही होगा आदम के औलाद का, यानी कि हम लोगों का यही होगा क्वेश्चन कि अल्लाह यू आर अश-शाफ़ी, यू आर द वन हू गिव शिफ़ा, तो हम कैसे आप कैसे बीमार पड़ सकते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, कहते हैं कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अगर मेरे बंदा वो उस टाइम पर बीमार था, अगर तुम उसकी अयादत को आते तो तुम मुझे पाते। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको सवाब देता, खाना खिलाने के लिए बोला कि मैं अज्र देता, पानी पिलाने के लिए बोला, क्या बोला कि मैं अज्र देता, ठीक है? लेकिन किसी बीमारी के लिए जाने के लिए कहा कि तुम मुझे वहां पाते। सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीमार इंसान से, क्योंकि एक तो वो टेस्ट है ना बीमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो वो एग्जाम में एग्जामिनर वही होता है ना, हॉल में ही होता है ना, तो सोचो इतना करीब होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि अगर तुम उसकी अयादत को जाते तो तुम्हें मैं मिलता, यानी कि अगर आपको अल्लाह को पाना है तो आप क्या करें, आप बीमार की अयादत के लिए जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं किससे, बीमार से। तो हमें क्या है, हमें ये सोचना है, अगर हम बीमार पड़े तो हमें ये सोचना है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझको शिफा देंगे, और अगर इस बीमारी से मेरी मौत भी हो जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन मुझे जन्नत देंगे, ठीक है? और अगर कोई और बीमार है हमारे यहाँ, तो हमें उस शख्स की बात सोचनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझको उस तरह से मोहब्बत करता है जैसे मैं उस इंसान की मोहब्बत में उसे देखने जा रहा हूँ। और अब ये 70,000 एंजल्स जो हैं, जब कोई इंसान किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, एक शाम से दूसरी शाम तक बहन। अगर वो सुबह में गया तो शाम तक वो करते हैं। एंड पता है, ये नंबर आप यहाँ पर देखिए कि नंबर 70,000 है यहाँ पर, ठीक? ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। काबे का तवाफ भी 70,000 फरिश्ते करते हैं, है ना? और 70,000 फरिश्ते, कभी आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 100 परिंदे भी अगर घूम रहे हो आसमान में तो कितना आसमान फड़फड़ाने लगता है ना, ऐसे वो फर 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 की आवाज आने लगती है। सोचिए, अगर 70,000 फरिश्ते आपके पीछे चले, आपके पीछे चले, ठीक है? और आपके लिए दुआ माँग रहे हैं, कैसा मंज़र होता होगा। और फरिश्ते तो कितने बड़े होते हैं ना, दे आर लाइक माउंटेन्स, पहाड़ की बराबर एक फरिश्ता बड़ा होता है बहनों, ठीक है? और 70,000 फरिश्ते ही तवाफ़ करते हैं और 70,000 फरिश्ते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मग़फ़िरत की। तो आप ये नंबर्स देखिए, अल्लाह ने क्या कहा, इक्वल रखा है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मोहब्बत करता है कि 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और 70,000 फरिश्तों को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी मग़फ़िरत के लिए लगा दिया, अगर हम जाएँ किसी की इयादत करने के लिए। सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी मोहब्बत करता है किसी बीमार इंसान से। तो हम बीमार हैं तो हम ये सोचे अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मेरे साथ है, और फरिश्ते जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ अपनी बीमारी में, तो वो बता रहे हैं कि अल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं इसको यकीनन इसको शिफ़ा दूँगा, यकीनन अगर इससे इसकी मौत हो जाएगी तो मैं जन्नत दूँगा। और अगर हमारा कोई
शख्स बीमार है या फिर हमारे घर पर कोई बीमार है, तो हम क्या याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको मिलेगा अगर हम उसकी इयादत करने जाएँगे तो, इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह जो है इयादत के लिए जाएँगे, किसकी? बीमार की इयादत के लिए इंशाल्लाह। अब तो ये है शिफ़ा उसको मिल गई, लेकिन जब कोई मर रहा होता है, मान लीजिए किसी की मौत हो गई, ठीक है? तो किसी ऐसे इंसान का आस-पास होना, ठीक है? जो हम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हम जैसे मान लीजिए हम हम जुड़े हुए होते हैं ना लोगों से, ठीक? और लेकिन आप पता है क्या कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो रही है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोफ़ेशनल बन रहे होते हैं, ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट डॉक्टर, है ना? हमें रोने का भी मौका नहीं मिलता और लोग आते हैं घर पर आपकी ताज़ियत के लिए, तो हम भी फॉर्मल हो जाते हैं कि हाँ, बस अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन अंदर से हमें पता होता है ना कि हमसे साँस भी नहीं ली जा रही होती है। और ऐसे इंसान के आस-पास होना जो मर रहा है, यानी उसको अपनी आँखों से देखना, उसको साँस छोड़ते हुए मतलब उसकी उसकी साँस निकलते हुए देखना और ये पता होना कि मलकुल मौत, मौत का फ़रिश्ता यहाँ है, ठीक है? और उनके चेहरे को देखते हैं और आपको पता होता है कि मलकुल मौत यहाँ पर है। आप देखते हैं कि उनकी आँखें एक डायरेक्शन में दिखती हैं और रूह निकल जाती है। तो ये कौन-सी है? सही मुस्लिम की रिवायत है 920 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहाँ रूह जाती है, जिस्म छोड़कर आँखें फ़ॉलो करती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप उस इंसान की आँखें जो है बंद कर देते थे। अबू सलमा का ये किस्सा है, अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनकी जो है मौत हुई, जब वो फ़ौत फ़रमाए तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने उनकी आँखें बंद की। ये सुन्नत है क्योंकि आँखें जो हैं फ़ॉलो करती हैं, तो थोड़ा ऊपर चढ़ती हैं और फिर वो स्टॉप हो जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी कुछ मत बोलिए। आँखें जब क्या हुआ उम्मे स वो जो अबू सलमा था, क्या हुआ कि फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखें बंद की तो रोने लगे, बिलखने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी कुछ मत बोलिए। अच्छाई के अलावा, उस इंसान की अच्छाई के अलावा अभी कुछ मत बोलिए, क्योंकि जो भी तुम अभी बोलोगे फरिश्ते उस पर आमीन कहेंगे। सुभान अल्लाह! यानी कि अगर आप उस इंसान की जो है मग़फ़िरत की दुआ करें उस टाइम पर, तो फरिश्ते आमीन कहेंगे और हो सकता है उस इंसान की मग़फ़िरत हो जाए। ठीक, यहाँ पर फरिश्तों का एक ग्रुप आया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस कमरे में है, तो ध्यान दो जो भी कहो अच्छा कहो क्योंकि वो फरिश्ते आमीन कहेंगे उस बात पर एंड दे मतलब स्पेशली आते हैं लाइक मतलब कोई इंसान मर गया मलकुल मौत लेकर गई और स्पेशली फिर अब मान लीजिए जैसे कि लोग आ रहे हैं देखने के लिए इसी तरीके से फरिश्तों का एक ग्रुप आता है, वहाँ बैठता है और फिर क्या कहता है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली अली सल्मा ओ अल्लाह फॉरगिव अबू सलमा है ना अबू सलमा के लिए बोला कि अल्लाह उसको माफ कर दे अल्लाह मगफिर ली अली सलमा फिर फरमाया वरफा फी मतलब इसका मैं मतलब समझा देती हूँ कि उसके क्या करें दर्जात ठीक है वरफा दर्जात फी किसमें उन लोगों में जो तुझे क्या है जो तेरे नेक बनते हैं कौन से हैं नेक बनते हैं उनमें जो है उनके दर्जात बुलंद कर ठीक है और फिर फरमाया और उसकी जो है कब्र को जो है वो फैला दें और उसकी कब्र में जो है उस फैली हुई कब्र में रोशनी भर दें और कहा कि उसके जो वो जिसको छोड़ कर गया है पीछे उनका ख्याल रखने वाला जो है उनको बना दे सुभान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की और फरिश्तों ने आमीन कहा बहनों तो हम क्या करें कि हम ये दुआ करें कि या अल्लाह जो है आप मतलब या अल्लाह क्या करें कि इसकी मगफिरत फरमाएं या अल्लाह क्या करें कि इसके दर्जात बुलंद फरमाएं और अपने नेक बंदों के दर्जातों में इसको शामिल करें और या अल्लाह इसकी जो है जो कब्र है उसको फैला दें उसमें नूर फैला दें और या अल्लाह क्या करें जिसको ये छोड़ गया है उनका ख्याल रखें। तो ये दुआ हम भी माँगे क्योंकि हमें वहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप होता है बहनों किसका एंजल्स का ग्रुप होता है वहाँ पर, ठीक है? और वो आमीन, आमीन, आमीन बोल रहा होता है। हमारी दुआएँ फिर भी एक बार को रद्द हो जाए हमारे अमालों की वज़ह से, हमारी बदअमली लेकिन फरिश्तों की दुआएँ रद्द नहीं होती हैं और जब हमें पता है कि यहाँ पर फरिश्ते बैठे हुए हैं तो क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ माँगनी चाहिए ताकि वो क्या करें, वो आमीन कहें।
ठीक। एंजल्स इन ह्यूमन फॉर्म, यानी कि क्या कोई एंजल्स जो है मतलब फरिश्ता है वो इंसानी शक्ल में आ सकता है? तो ये सही बुखारी की एक मतलब क्या हमने देखा है, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और अचानक से कोई आए और वो आपकी मदद कर गया। एंड मतलब आप ऐसे होते हैं कि अल्लाह ने कोई फरिश्ता ही भेजा था ना, मतलब वो इंसान फरिश्ता बन के आया और मेरी मदद करके चला गया। एंड समटाइम्स आपको कुछ सुनना होता है टू लिफ्ट योरसेल्फ अप, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा वैसा फ़ील कर रहे होते हैं ना, निराश फ़ील कर रहे होते हैं, हताश फ़ील कर रहे होते हैं। तो सिर्फ़ आपका मूड लिफ्ट अप करने के लिए, सिर्फ़ आपको एक पॉज़िटिव वो देने के लिए, एनर्जी देने के लिए कोई इंसान कुछ बोल जाता है, एंड दैट जस्ट क्लिक योर माइंड, और क्या होता है कि बस आप कहते हो कि नहीं, आपको लगा कि इसे कैसे पता चला ना कि मतलब मैं इस सिचुएशन से डील कर रही हूँ या मैं इस सिचुएशन से डील कर रहा हूँ, और वो क्या होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इससे पहले ना आपने उन्हें देखा होता है ना इसके बाद आप उन्हें कहीं देखते हैं, ऐसे ही चलते फिरते नजर आते हैं। शैतान इंसानी रूप में मिल सकता है, ठीक है? पर क्या फरिश्ते मिल सकते हैं? इसके बारे में देखते हैं कि शैतान भी आया था ना इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, है ना? और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के सामने भी वो आया था, तो वो मतलब शैतान आ सकता है बेसिकली, लेकिन क्या फरिश्ते आ सकते हैं वो हमें जानना है, ठीक? इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप 3 लोगों के बारे में बात करते हैं, जो कि बनी इसराइल की कौम के थे। ठीक? तो जिसमें से एक गंजा था, एक अंधा था और एक लेपर्ड था, दैट मीन वो कोढ़ी था, जो लेप्रेसी वो होता है ना। तो एक जो फरिश्ता था वो पहले के पास गया, वो कोढ़ी के पास गया, स्किन डिजीज होती है लेप्रेसी, उसके पास गया और बोला कि क्या चाहिए तुमको? क्या ऐसी चीज़ है कि तुम अपने बारे में चाहते हो और चेंज करना चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे अच्छी चमड़ी, यानी कि मुझे अच्छी जिल्द, यानी कि मुझे अच्छी स्किन चाहिए। और लोग घिन करते हैं मुझसे। तो फरिश्ते ने उस इंसान को टच किया और उसकी स्किन ठीक हो गई पूरी तरीके से। फिर उसने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू लव द मोस्ट, यानी कि किस तरीके का तुमको जायदाद चाहिए या किस तरीके का तुमको माल चाहिए, प्रॉपर्टी। तो उसने रिप्लाई किया, उस कोढ़ी ने कहा कि मुझे ऊँट चाहिए। तो जो फरिश्ता था वो क्या हुआ, वो एक वो लेकर आया, एक ऊँट लेकर आया, एक हामिला ऊँटनी लेकर आया, बेसिकली प्रेग्नेंट वो थी वो कैमल, ठीक? फीमेल कैमल, तो वो लेकर आया और उस ऊँटनी से ऐसा हुआ कि उसका पूरा फार्म जो है, उस ऊँटनी ने इतनी बरकत दी, उसका पूरा फार्म ऊँट से भर गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माला-माल हो गया। फिर इसी तरीके से वो जो फरिश्ता था, एक फरिश्ता गंजे के पास गया और बोला तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे बाल चाहिए और ताकि मैं खूबसूरत दिखूँ। तो फरिश्ते ने क्या किया, टच किया, ठीक है, उसके सर को, और उसके सर पर बाल आ गए बहुत खूबसूरत, बहुत सही तरीके से, ठीक है। बेसिकली वो फरिश्तों का हेयर ट्रांसप्लांट था जो कि अभी आज की दुनिया में नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रॉपर्टी उसने पूछा कि आपको कौन-सी प्रॉपर्टी चाहिए या किस तरह का माल तुम चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे गाय चाहिए, तो वो उसके पास एक प्रेग्नेंट गाय देकर चला गया, उससे बछड़े हुए जो बच्चे होते गाय के, और इसी तरीके से उसमें इतनी बरकत थी कि वो भी अच्छे से मतलब उसके पास गाय का फॉर्म हो गया। फिर उसी तरह से जो ब्लाइंड था, जो अंधा था, याद रखिए कि अंधा होना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो है उसमें से आज़माइशों में से बहुत ही स्पेसिफिक आज़माइश है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए अलग से कुरान में कई जगह ज़िक्र किया है कि अंधे होने का रिवॉर्ड ये है। ठीक? मल्टीपल रिवॉर्ड दिए हैं, और उसके किसके लिए, अज्र के लिए और उसके पेशेंस के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए, उसके सब्र के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने बोला कि रोशनी चाहिए मुझे आंखों की, ठीक, तो ताकि मैं देख सकूं। तो फिर उनसे पूछा कि क्या फिर उसको क्या किया, आंखें पोंछ दी, वाइप किया ना उसकी आंखों पर फरिश्ते ने। जब आंखें पोंछी तो वो देखने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने पूछा व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू लव द मोस्ट, तो उसने कहा कि मुझे भेड़ चाहिए, तो उसी तरीके से उसको प्रेग्नेंट भेड़ दी, और जो है पूरा प्लॉट ऑफ शीप उसके पास था। फिर उसके बाद वो फरिश्ते वापस आए। जब वो फरिश्ते वापस आए तो अब इनके टेस्ट की बारी थी बहनों, ये देखिए कि फरिश्ते वापस आए, और जब वो कोढ़ी के पास गए तो उससे, और कोढ़ी के पास वो कोढ़ी की ही शक्ल में गए, लाइक उसी चमड़ी में, उसी स्किन डिजीज में वो गया और पूछा कि क्या मतलब मेरी मदद कर दो, और क्या मतलब तुम पहले ऐसे थे तो तुम कैसे ठीक हुए?
तो उस कोढ़ी ने बोला कि मैं तो नहीं था पहले ऐसा, लाइक मतलब आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक देख मैं ऐसा ही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं तुम पहले ऐसे नहीं थे, मैंने तो सुना है कि तुमको रातों-रात ये चीज़ मिली है। तो उसने कहा कि नहीं ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है, इसमें किसी का कोई कुछ नहीं है और मैं हमेशा से ऐसा ही था। फिर जब वो उस गंजे के पास गया तो उस गंजे ने भी इनकार किया, कहा कि मेरे तो सर पे हमेशा से बाल हैं और तुम दूर हटो मुझसे। लाइक मतलब उनको लगा होगा ना कि इसको छुएँगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहा कि तुम दूर हटो और ये कमाया हुआ सब कुछ मेरा है। तो फिर क्या हुआ कि इस टेस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अंधा पास हुआ था, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं जानता हूँ। सोचिए अंधा कैसे पास हो गया ना, अंधे के पास इतना पेशेंस था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बड़ी आज़माइश थी। और जब फरिश्ता अंधा बन के उसके पास गया, उसने कहा कि तुमको जो चाहिए तुम ले जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं जानता हूँ कि क्या मतलब बीतती है जब कोई इंसान अंधा होता है, तुमको जो चाहिए तुम ले जाओ। बहरहाल उनसे जो है फरिश्ता जो है उन पर उनको उसको क्या हुआ कि एरोगेंस ने ओवरटेक कर लिया किसको, गंजे को और कोढ़ी को। तो उससे उनसे सब कुछ छिन गया और फिर से वो पहले जैसे हो गए। और क्या हुआ कि जो अंधा था उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, उसने कहा कीप योर प्रॉपर्टी विद यू, क्योंकि अल्लाह तुमसे खुश है और तुम्हारे 2 साथियों से गुस्सा है। तो इस तरीके से वो कहकर चला गया, लेकिन उसने रिवील नहीं किया। ये सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फरिश्ते इस तरीके से आए थे, लेकिन फरिश्तों ने ये रिवील नहीं किया कि मतलब हम फरिश्ते हैं। तो बेसिकली इसका जो मोरल था वो ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर चीज़ों को देखते हैं या फिर कुछ बोलते हैं या कोई हमारे पास मदद के लिए आता है तो हम धुतकारे ना हो फरिश्ते हो सकते हैं। तो उसके लिए हम ये भी नियत ना रखें कि ये फरिश्ता होगा तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, फिर तो लालची हो गए ना हम कि फरिश्ता है तो उसकी मदद कर दो। नहीं, हमें अपना अखलाक ही ऐसा रखना है कि हम किसी की भी मदद करें। हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको फरिश्ता बनाकर भेजे हो, तो हमारी ज़िंदगी की इस्लाह करने के लिए भेजे हो या हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए भेजे हो, तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास किसी भी मदद के लिए आता है, तो अगर हम उस मदद के काबिल हैं, तो इंशाल्लाह हम उसकी मदद करेंगे। कॉलर्स फ्रॉम हेवन, हेवंस गेट क्या होता है कि जब इंसान सोकर उठता है, वो मैंने बताया है कि 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं उस पर, ठीक है? 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं और क्या कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अति मुनाफिकन, ठीक है? कलफा, ओ अल्लाह गिव द वन हू लिव्स, ठीक? अल्लाहुम्मा अति मुमसिकन तलफना, तो ओ अल्लाह विदहोल्ड फ्रॉम द वन हु विदहोल्ड। यानी कि ये चैरिटी की बात हो रही है कि अल्लाह जो देता है उनको तू दे और जो रख लेता है अपने पास ही उनको तू उनसे तू रख ले। तो बेसिकली दिस इज अबाउट चैरिटी। तो सदका खैरात जो होती है उसकी शीट होती है, जैसे मान लीजिए अब आप किसी मजलिस में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपकी अटेंडेंस लग रही है, तो क्या आप चाहेंगे या यहाँ पर मेरी कोई भी बहन है वो ये चाहेगी कि आपकी एब्सेंट लग जाए? नहीं ना। तो इस तरीके से जब आप घर से निकलते हैं तो फरिश्ते होते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह उसको दे जो देता है तेरी राह में, और उसके पास से ले ले जो तेरी राह में नहीं देता है ना। ये 2 फरिश्ते ये दुआ कर रहे हैं। अब सोचो फरिश्ते दुआ करें तो दैट मीन्स यू हैव टू बी, आप इसको क्या करें कि अपनी डेली आदत बना लें। इवन इफ इट इज 1 रुपी 2 रुपी, तो आपको रोज खैरात करनी है, क्योंकि फरिश्ते जब आप सो के उठते हैं ना, दो वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जो देता है उसको दे और जो लेता है उससे ले ले, जो रखता है अपने पास उसको तो जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दिया है दूसरे को देने के लिए, तो अपनी ज़रूरत समझ के रख रहा है, वो किसी और की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा है, तो उससे ले लें, ठीक? और इसी तरह से क्या हुआ कि ये हदीस ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी के मुताबिक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1000 दे रहे हैं रोज़, ऑब्वियसली ये आपकी कैपेसिटी के मुताबिक है, ठीक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ता जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होता है और उस दरवाजे को पकड़ता है और क्या कहता है, और कहता है जो भी आज बेहतर खूबसूरत सदका करेगा उसके लिए कल एक खूबसूरत इनाम है, सुभान अल्लाह। ठीक है, एक आदमी जा रहा था, ठीक है, ऊपर आसमान से आवाज़ थी, बागों में पानी देना था, ठीक है, वो परेशान था ना, उसके बागों में पानी देना था। और तो पता है क्या हुआ, उसके लिए बादल इकट्ठा हुए और बारिश का पानी कहाँ गया, कतार बन के पत्थरों से डायरेक्टली उसके बागात में चला गया।
ठीक? तो उससे पूछी गई, उससे पूछा कि तुम्हारी क्या स्टोरी है, कि मतलब तुम इतना परेशान थे और अल्लाह सुब्हान तआला ने इतनी जल्दी बारिश करके, मतलब लिटरली बादल इकट्ठा हुए और पानी चला गया उसके बागात में। तो उसने बोला कि मैं जो कमाता हूँ, मैं 1/3 अपनी फैमिली के लिए रखता हूँ, 1/3 इन्वेस्ट करता हूँ और 1/3 मैं सदका करता हूँ। और सोचिए, आसमान से आवाज आई कि बागों में पानी देना है। सुभान अल्लाह! अल्लाह सुब्हान व तआला इस तरीके से मदद करते हैं अपने उन बंदों की जो अल्लाह सुब्हान व तआला की राह में खर्च करते हैं। इस चीज़ से हमें क्या समझना चाहिए कि जो चैरिटी है वो डेली हैबिट होनी चाहिए। हमें फंड रेज़र का वेट नहीं करना है बहनों, कि कोई जमा करेगा, कोई इकट्ठा करेगा, कोई माँगेगा तो ही हम दें। हमें क्या है, क्योंकि हम डेली चैरिटी करेंगे, डेली जो है दुआ करेंगे, कौन फरिश्ते हमारे लिए, और दुआ जब डेली होती है, फरिश्तों की दुआएँ कबूल होती हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसका अज्र देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब ये फ्राइडे के लिए था, फ्राइडे रोल बुक। दिस इज़ बेसिकली अबाउट कि कौन पहले जाता है मस्जिद में और कौन बाद में जाता है। तो आई थिंक कि सभी को पता होगा, इसको मैं थोड़ा कंसाइज़ कर देती हूँ ताकि मैं दूसरा पॉइंट बता पाऊँ, क्योंकि टाइम कम है। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट रो के बारे में बात करते हैं, जो पहली कतार होती है, उसके जो विटनेस होते हैं, कौन विटनेस होता है, जो पहली कतार होती है इमाम के पीछे खड़े होने वाली, उसके विटनेस यानी कि उसके गवाह खुद कौन होते हैं? फरिश्ते होते हैं। और इट इज़ नॉट कि आप फिज़िकली इमाम के पीछे खड़े हैं, इट इज़ समथिंग आप पहले कितना गए, जैसे अज़ान हुई, कुछ लोग अज़ान के बाद जाते हैं, कुछ लोग खुतबे के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ नमाज़ के लिए जाते हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं कि वो रजिस्टर्ड हो जाता है उसके अंदर ना, अव्वल अव्वल नंबर पर, ठीक है? और फरिश्ते उनको पहचानते हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ये बंदे हैं जो कि पहले आए थे। इसी तरीके से जुमे का दिन होता है कि जब आप जुमे के दिन जाते हैं तो शैतान निकलता है, पता है आपको? शैतान निकलता है और वो जाता है मार्केट में, और मार्केट में जब आप अपने दुनियावी काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, आपको चाहता है कि आप लेट हो जाओ बहनों। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चाहता है कि हम मस्जिद ना जाएँ और हमें लेट हो जाएँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज्र दे रहे होते हैं। कैसा अज्र दे रहे होते हैं कि जब कोई जाता है तो एक ऊंट की बराबर की कुर्बानी मिलती है। किसमें? जब कोई फर्स्ट कमर होता है, ठीक है? सनराइज से जुमा तक के बीच की ये बात हो रही है। जब कोई पहला जाता है इंसान, तो एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब। फिर उस तरीके से जब बाद में जाता है तो एक गाय की कुर्बानी के बराबर उसको सवाब मिलता है। इसी तरीके से एक बकरी के बराबर सवाब मिलता है, और घटते 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक अंडे और एक मुर्गी के बराबर का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम जो है वो खड़े होते हैं, सलाम करते हैं और खुतबा देने के लिए वो करते हैं, तो ये वाला जो रोल बुक है, फरिश्ते बंद कर देते हैं और खुतबा करने चले जाते हैं, यानी कि उसके बाद आपको कोई सवाब नहीं मिलता। इसीलिए शैतान क्या करता है कि काम में आपको इतना लेट कराएगा कि आप सिर्फ नमाज ही पढ़ेंगे, आप ना खुतबा सुन पाएंगे, ना आप पहले जा पाएंगे, और वो चाहता ही नहीं है कि हमको सवाब मिले, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम प्रेयर टू प्रेयर, यानी कि जब आप एक टाइम से दूसरे टाइम की नमाज तक बैठे रहते हैं, तो ये फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो ज्यादातर मगरिब से इशा के बीच में बैठकर पढ़ते थे। आपकी नमाज जो है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, क्वांटिटी वाली नहीं, ठीक है? बहुत डिफरेंस है एक ऐसे इंसान में जो 20 में बस कूद जाए ना नमाज के, और जो अपना सब कुछ नमाज के लिए कुर्बान करके, ठीक है? और सिर्फ नमाज पढ़ने खड़ा हुए, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है उसमें, ठीक है? और जैसे कि कोई इंसान है, वो सूर्य कैफ है, वो उससे जुमा से पहले पढ़ता है, ठीक? और इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह को याद कर रहे हैं, ठीक है? फिर ये सुनन अन-निसाई की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आप अपनी नमाज की जगह यानी अपनी जानमाज़ पर रहते हो, बावुज़ू, तो फरिश्ते तब तक आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल 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 अ, इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ। ओ अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, ठीक है? या अल्लाह उसको माफ़ कर दीजिए और उसको जो है उस पर रहमत अल्लाहुम्मर हम आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट वेल। तो
क्या है कि ओ अल्लाह इसको माफ़ कर दीजिए और क्या कर दीजिए कि इस पर रहमत फरमा दीजिए, ठीक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो तुम्हें हर गुनाह माफ़ करवा सकती है और आपके दर्जात बुलंद करवा सकती है। सोचिए बहनों, हर गुनाह माफ़, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से कहा, तो सहाबा ने कहा कि क्या है वो चीज़? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आप वज़ू करते हो, अच्छे से धोते हो और मस्जिद की तरफ जाते हो तो अपने कदम बढ़ा दो। क्योंकि ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब आप जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो आप लंबा रास्ता लिया करते थे, क्योंकि एवरी स्टेप पर क्या होता है, आपको नेकी मिल रही होती थी। और 2 नमाज़ों के बीच मस्जिद में रहो, यानी कि असर से मगरिब में रह रहे हो ये, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब से इशा वो रिकमेंडेड है उसी में रहा करते थे। मगरिब से इशा के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। वो इंसान ऐसा होता है जैसे कि एक कि जंग जाने वाला इंसान, यानी कि जाने वाला इंसान कितनी तैयारी से जाता है ना, और किसके खिलाफ वो जंग लड़ रहा होता है, अपनी नफ्स के खिलाफ लड़ रहा होता है, शैतान के खिलाफ, क्योंकि वो निकला ही नहीं है मगरिब के बाद से इशा तक। वो इंसान कैसा हो रहा है, जैसे एक जंग को जाने वाला इंसान होता है और शैतान से जंग लड़ने के लिए वो तैयार होता है। इसी तरह एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से दौड़े और लोगों ने देखा कि क्यों, मतलब जल्दी से दौड़े, जबकि वो तो सुकून और इत्मीनान वाले इंसान थे। तो जब पूछा उनसे कि क्या तुम में से कोई यहाँ एक नमाज से दूसरी नमाज तक बैठा था? तो एक शख्स था, उसने कहा कि हाँ, मैं बैठा था। तो फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा खोला गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहे हैं फरिश्तों से, आपकी एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में ये मेरा बंदा बैठा था, देखो। यानी कि एक इंसान अगर मगरिब से इशा के बीच में सिर्फ मस्जिद में बैठा है या फिर आप मुसल्ले पर बैठे हैं, तो जन्नत का एक दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई और वो थोड़ा दौड़े, तेज़ी से गए और फिर पूछा कि तुम में से कौन बैठा था? तो एक शख्स ने कहा, मैं बैठा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी बात कर रहे हैं फरिश्तों से कि देखो ये मेरा बंदा, इस काम होंगे ना, इसको मगरिब से इशा के बीच में काम होंगे, लेकिन ये मेरे लिए बैठा है, मेरी एक नमाज से दूसरी नमाज के लिए बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जो है वो करते हैं, आपका ज़िक्र करते हैं, ठीक? और इसी तरीके से क्या है, जब आप कभी भी अपने घर में होते हैं या फिर अपने उसमें होते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं बहनों। शैतान भी होता है आपके साथ और क्या होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं। जब आप अपने घरों से शैतान को भगाएँगे कैसे? आप जैसे होते हैं ना कि शैतीन है, जिन है, ये सब कुछ, तो आप अपने घर से शैतान को कैसे भगाएँगे? फरिश्तों की एंट्री करा के। जब आप फरिश्तों की एंट्री कराएँगे तो वो लड़ेंगे नमाज़ के वक़्त। अल्लाहू अकबर जब आप कहते हैं तो एक फरिश्ता जो है, पहाड़ की बराबर का फरिश्ता आपके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। किसके? पहाड़ की बराबर का फरिश्ता पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और मुअत्ता मलिक फरमाते हैं कि अगर आप एक सूखे रेगिस्तान या ज़मीन में भी हों, तो भी आप अकेले नहीं पड़ रहे होते हैं। यानी कि जहाँ पर एक वो भी नहीं उगता है ना पेड़ और आप वहाँ अकेले हो, तो भी पहाड़ के बराबर एक फरिश्ता जो है आपको देख रहा होता है। यानी कि जब हम नमाज़ पढ़ें तो हमें ये रहे कि वो तो पैर जैसे हम अकेले में होते हैं तो जल्दी-जल्दी सजदे करने लगते हैं, नहीं, वो फरिश्ता हमारे साथ होता है। तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। इसी तरह से सुनन अबू दाऊद की ये है कि जमात के साथ जब आप वो करते हो तो 25 गुना सवाब है उस चीज़ का। और फलाह का मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी नमाज़ पढ़ रहे हो, लाइक यू आर मिडल ऑफ समव्हेयर ना, या तो आप कहीं जा रहे थे ट्रैवल करके और फिर कहीं बैठ गए। तो आप जब वहाँ जाते हो तो फिर आप वहाँ अकेले हो, लाइक मतलब आप ट्रैवल कर रहे थे, आपके सारे साथी उतर गए, आपकी जो डेस्टिनेशन थी वो थोड़ी देर से है, लेकिन फिर आप जब वहाँ करते हो तो उसका डबल सवाब है। लाइक आप जब अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो उसका क्या है, डबल सवाब है बहनों। सुनन अन-निसाई की ये हदीस है कि एक इंसान था, घाटी में अकेला रहता था, वो भेड़ चराने वाला था, तो वो खुद ही अज़ान देता था बहनों, खुद ही नमाज़ पढ़ता था, खुद ही जो है खुतबा किया करता था, सोचिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से कहते थे कि देखो ये अज़ान, ये नमाज़, ये मेरे लिए, मेरे तक़वे से, मेरे डर से, मेरी मोहब्बत में ये करता है और तुम गवाह रहना फरिश्तों, मैं इसको माफ़ करता हूँ।
क्यों? क्योंकि उसमें सिंसियरिटी थी, यानी कि वो अकेला है तो उसको ये नहीं कि कोई देख, ज़्यादातर हम सिंसियर कब होते हैं? जब हमको कोई देख रहा होता है। सोचो वो इंसान अकेला घाटी में, वादी में था और वो खुद अज़ान देता था, खुद वो नमाज़ पढ़ता था, सुभान अल्लाह। लेकिन इस हदीस का मतलब ये जो है, ये नहीं है कि आप जो है जमात छोड़ कर के 50 गुना सवाब मिल रहा है तो आप खाली जगह में जाके नहीं पढ़े। नहीं, अगर ऐसा है कि जमात के साथ आप पढ़ सकते हैं तो वो बेहतर है, और अगर ऐसा है कि आप नहीं है कहीं पर तो आप अकेले पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये हेवेंस आर क्रीकिंग करके ना, तो इसमें क्या है कि जैसे नासा भी बोलता है, नासा के मुताबिक खैर साइंस को तो बहुत पीछे छोड़ चुका है कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी नासा वाले ये कहते हैं, उनके मुताबिक ये है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, जो ऊपर सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, वो खामोश नहीं है। दे आर नॉट साइलेंस। उनमें क्या होता है ना, उसमें कुछ तरह की आवाजें होती हैं। हर प्लैनेट्स की अपनी आवाज है। ठीक है, हर सितारे जो है अलग तरीके की आवाज करता है, अलग अलग तरीके की आवाज है। ठीक है, उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस में कहते हैं कि आसमान में एक बालिश की जो चार, मतलब ये जो चार उंगलियां होती है ना, इसके बराबर भी जो है जगह खाली नहीं है। इसके बराबर की जगह खाली नहीं है कि वहां एक फरिश्ता ना मिले। सोचो बहनों, इतनी तादाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को बनाया कि 4 उँगली जो एक बालिश की जो जगह होती है, लाइक 1 ब्लांट जो होता है, ठीक है? एक फुल पाम जो होता है, ठीक? उसकी बराबर भी जगह खाली नहीं है, कि इतनी जगह खाली नहीं होती कि दूसरा फरिश्ता वहाँ खड़ा होता है। और ये क्या कर रहे होते हैं फरिश्ते? ये अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, और क्या कहते हैं, आमीन कह रहे होते हैं। और जब इमाम जो है आमीन कह रहा होता है तो फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। और अगर उसका आमीन, इमाम का आमीन जो है और उनका आमीन जब साथ में मिलता है तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम क्या कह रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, आमीन बोल रहे होते हैं, और उसके अलावा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द जब बोल रहे होते हैं तो फरिश्ते भी वही बोल रहे होते हैं। और अगर उनका समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द और हमारा साथ में अगर पड़ जाता है तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं बहन। सुभान अल्लाह। तो आवाज़ें हैं, ये नासा अभी बोलता है कि आवाज़ें हैं इसमें, यूनिवर्स खामोश नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बता रहे हैं ना कि फरिश्ते कब से हैं वहाँ पर, और वो अल्लाह की क्या कर रहे हैं, वो हम्द व सना कर रहे हैं। तो चहल-पहल है। 4 बालिश के बराबर भी वहाँ पर जगह नहीं है, वो तो पूरा भरा हुआ है, तो वो उनकी आवाज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब गैदरिंग ऑफ अ रिमेंबरिंग, यानी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जहाँ याद किया जाता है तो वहां पर फरिश्ते क्या करते हैं। एक तो होता है अकेले में याद करना, ठीक, फिर एक होता है महफिल में याद करना, जैसे हम सब बहनें अभी महफिल में बैठे हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग अजर है। जब अकेले में कोई इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अकेले में याद करते हैं, सिर्फ खुद से याद करते हैं। और जब असेंबली में याद करता है कोई इंसान, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों की असेंबली में, फरिश्तों की महफिल में उसे याद करते हैं। और चाहे वो किसी भी तरीके का हो बहनों, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, यहाँ पर किसी तरीके का वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। नॉलेज, दुआ, कुरान रिसाइटेशन, किसी चीज को सीखना, किसी भी तरीके में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम आता है तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप क्या करते हैं, याद करते हैं। ये नहीं कहा कि सिर्फ आप नमाज की बात करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला याद करेंगे, नहीं। आप सिर्फ सीखने बैठो, आप चाहे सिखाने बैठो, आप सिर्फ कोई वीडियो ही क्यों ना देख रहे हो, है ना, रिलेटेड टू इस्लाम, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको याद करते हैं। हर रात जो है फरिश्ते निकलते हैं और देखते हैं उन लोगों को कि कौन है जो याद करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद में देखते हैं, कहीं भी, एनीवेयर, लाइक इन योर रूम, इन योर हाउस, ऑन योर बालकनी, जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है? और एक फरिश्ता कहता है दूसरे से, मैंने ढूँढ लिया जो हम ढूँढ रहे थे। तो वो पर फैलाते हैं आसमान तक कि क्या ढूँढ लिया तुमने, कि वो इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद कर रहा है, उसकी हम्द और उसकी सना में लगा है, तो उसके ऊपर वो पर फैलाते हैं और एक के ऊपर एक कतार बना के कहाँ तक चले जाते हैं, आसमान तक चले जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चले जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि क्यों जमा है ये लोग, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो
तो जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन है जो वो हो रही है बीच में। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह ये आपके बारे में, ये सीखने के लिए बैठे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या चाहिए इनको? तो फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह जन्नत की तलब रखते हैं, जन्नत माँगते हैं और आपसे क्या करते हैं? माफ़ी की तलब रखते हैं, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या इन्होंने जन्नत देखी है जो जन्नत की तलब रखते हैं? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं अल्लाह जन्नत तो नहीं देखी इन्होंने। तो फिर कहते हैं और क्या माँगते हैं? तो वो कहते हैं कि या अल्लाह किससे माफ़ी वो अम आग से, जहन्नुम की आग से पनाह चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या इन्होंने जहन्नुम की आग देखी है? अगर देखते तो क्या करते? तो फरिश्ते कहते कि अल्लाह अगर वो देख लेते जहन्नुम की आग तो वो और शिद्दत से दुआ करते और शिद्दत से आपको जो है क्या करते? याद करते। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन फरिश्तों से कहता है कि तुम गवाह रहना, मैं इन सब लोगों को माफ़ करता हूँ और बख्शता हूँ, सुभान अल्लाह, क्योंकि ये मेरी याद में वहाँ बैठे हुए हैं। एंड ये सोशल गैदरिंग की वजह से, अब मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ पर सिर्फ़ इसलिए आया क्योंकि उसकी अम्मा ने यहाँ पर बिठाया उसको, है ना? कोई इंसान सिर्फ़ इसलिए आया क्योंकि जो है उसने पिछला किया था और इस बार उसको पूरा करना था। तो जैसे फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह ये तो सिर्फ़ सोशल गैदरिंग की वज़ह से आया था। फिर ये कोई कहेगा कि ये सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ़ महफ़िल में रहने आया था ताकि दूसरे ये सोचे ना कि ये एब्सेंट था इस दिन, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उनमें से कोई भी किसी भी नियत से आया था, लेकिन वो बैठा हुआ है और उनको जो है मैं क्या नहीं करूँगा, मैं किसी भी चीज़ से गाफ़िल नहीं रहने दूँगा और मैं क्या करूँगा बख़्शिश करूँगा सबकी। सुभान अल्लाह! यानी कि कोई भी कैसी भी नियत से आता है, तो ये जो गैदरिंग है, ये जो महफ़िल है बहनों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है यहाँ पर बैठी हुई सारी बहनों को बख़्शेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें क्या करना है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि चाहे हम बीमार पड़ें, चाहे हमारे कोई बीमार पड़े, तो हमें वहाँ साबित कदमी रखनी है और हमें क्या रहना है, हमें पता रखना है कि फरिश्ते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्र रखें। फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भी वहाँ फरिश्ते हैं और क्या करें अपनी बहनों को और अपने भाइयों के पीठ पीछे हो रही बुराइयों को रोकें, है ना? उनके लिए कोई कुछ ना बोले क्योंकि आपके लिए एक फरिश्ता अपॉइंट होगा पुलसिरात पर, पुलसिरात से तो सब डरते हैं ना बहनों, क्या मंज़र होगा। सोचो वो आपके गोश्त को जो है जहन्नुम की आग से बचाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी गैदरिंग में आए और किसी भी उससे आए, नियत से आए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है गैदरिंग्स में, महफ़िल में जो है सबको माफ़ करता है और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं, उन सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस चीज़ से इन जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं, जितना भी इसका मोरल है, उस सब को अपनी ज़िंदगी में क्या करने की, इम्प्लीफ़ाई करने की जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं उनको शामिल करें इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर्स।